Hello students, I'm going to teach you in the chapter of laws of motion the concept of law of conservation of momentum. सभी लोग अटेंटिव होकर बैठ जाइए। अब स्टार्ट करते हैं इसको। आप नोट करो डेफिनेशन। मैं डेफिनेशन बोलता हूं, राइट डाउन द डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं समझाऊंगा। इन द एब्सेंस ऑफ external force, the vector sum of the linear momenta of a number of particles in an isolated system remains constant and remains unchanged by their mutual interaction. Law of conservation of momentum, once again I'm repeating, states that in the absence of external force, the vector sum of the linear momenta of a number of particles in an isolated system remains constant and remains unchanged by their mutual interaction. Third time I'm repeating, in the absence of external force, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, कहां? In the absence of external force in an isolated system. स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब वो सिस्टम जो फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ सराउंडिंग अफेक्ट हो, जिसपे कोई भी बाहर की फोर्स ना लग रही हो। आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एंड रिमेन्स अनचेंज्ड। तो अगर बहुत सारी बॉडीज हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, उनका जो सम ऑफ मोमेंटम है, जिसको प्लूरल मोमेंटा बोलते हैं, वो हमेशा क्या रहेगा? दैट विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। दैट विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। अब अगेन हम अगर बोले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? दैट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। सपोज ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का आ गया, तो आप क्या करेंगे? पहले ये डेफिनेशन लिखेंगे, देन यू विल राइट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू dt of p। तो अब स्टेटमेंट क्या कहती है? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0, इफ एफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज ddt of p equal to 0 vector. This implies ddt of p, ddt of a constant vector, so p is equal to a constant. यही डेफिनेशन है। In the absence of external force, the total momentum of an isolated system is always constant. अब जब P constant है, तो इसका मतलब है total initial momentum is equal to total final momentum. Total initial momentum is equal to total final momentum. Hope is it clear to my students this concept? Total initial momentum is equal to total final momentum in the absence of external force.
इस चीज को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे in the what do you call that topic in the chapter of work power energy when I will be teaching you elastic collision and inelastic collision. But ये बहुत important एक concept बन के आया कि momentum always remain constant. नोट कर लो इसको जल्दी से. कैसे? According to Newton's second law of motion, F external is equal to ddt of P. F external is equal to ddt of P. If F external force is equal to 0, then ddt P equal to 0. Then ddt of P is equal to ddt a constant vector. So P is equal to constant. So total initial momentum is equal to total final momentum. Hope students ये सारा क्लियर हो गया आपको. अब मैं थोड़ा आगे कुछ एक्सप्लेन करता हूं. आगे मैं ये एक्सप्लेन करता हूं, आप पहले इसको नोट कर लो अच्छे से. अगर हम एक सिस्टम ले, लेट M1 U1 M2 U2 टोटल इनिशियल momentum M1 V1 M2 V2 total final momentum, then total initial momentum is equal to total final momentum. आप पेपर में पूरा लिखेंगे, आप टिम और टीएफएम नहीं लिखेंगे, आप टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम लिखेंगे. तो ये बन के आ जाएगा M1 U1 M1 M2 U2 is equal to M1 V1 M2 V2. So this is how we get the total initial momentum is equal to total final momentum. This is what the law of conservation of linear momentum, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपने समझा, that in the absence of the external force the total momentum is always constant. नोट कर लो इसको. अब स्टूडेंट्स मैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस आपको टीच करता हूं. एक तो एप्लीकेशन है रिकॉइल ऑफ ए गन. रिकॉइल ऑफ ए गन. देखिए एक गन है, सपोज इस गन का मास है कैपिटल M और इसके अंदर जो बुलेट है उसका मास है स्मॉल m. तो जब बुलेट यहां से फायर होती है विद वेलोसिटी v, तो गन की भी वेलोसिटी कैपिटल V, initial momentum of the system 0. Initial momentum of the system 0. मालूम है क्यों? बिकॉज गन भी रेस्ट पे है, बुलेट भी रेस्ट पे है. जैसे हम फायर करते हैं तो फाइनल मोमेंटम क्या आएगा? mv प्लस mv. नाउ बाय लॉ ऑफ conservation of linear momentum, mv plus mv equal to 0. तो mv is equal to minus mv, v is equal to minus m upon m into v. तो ये है velocity with which the gun will recoil. जैसे ये गन है मेरे हाथ में, मैं फायर कर, रेस्ट पे है, बुलेट भी रेस्ट पे है, तो जैसे फायर किया था ये ऐसे होती है, ये ऐसे होती है, फायर के बाद ऐसे होती है. कोई भी गन है, चाहे कैनन है, ऐसे बैक आती है.
इसको बोलते हैं रिक्वायल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? रिक्वायल, वी कैपिटल, वी कैपिटल। अगर बुलेट और गन दोनों सेम साइज के हो तो आप खुद जानो कि बुलेट जिस स्पीड से जाएगी उसी स्पीड से गन अपोजिट स्पीड से जाएगी। इसलिए गन का हैवी होना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, V is inversely proportional to mass. More heavier the gun, lesser is the recoil. So lesser is the velocity with which the gun will go back. So ये आपको hurt नहीं करेगी। तो हम क्या बोलेंगे कि जो बुलेट है वो हमें हर्ट तब करती है जब गन हमें हर्ट तब करती है जब उसकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो। तो ऑब्वियसली जितना हैवी बुलेट गन होगा उतना रिक्वायर्ड वेलोसिटी कम होगा। सो इज इट क्लियर? एक चीज और स्टूडेंट्स, आप बोट में गए हो तो बोट से जब आप स्टेप आउट करते हो तो बोट पीछे की ओर जाती है, वो भी यही सीन है। ओके तो जितना मास बोट का ज्यादा होगा वो नहीं जाएगी, जितना मास कम होगा बोट उतना जाएगी। कभी कभी आपने नोट किया है कि कहते हैं कि जहाज को दोबारा वापस इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा क्योंकि एक बहुत बड़ा मतलब जहाज है जिसको एक छोटा सा पक्षी टकरा गया और जहाज ब्रेक हुआ। क्यों ऐसा होता है? सुनो मेरी बात। स्मॉल एम बर्ड है, कैपिटल एम जहाज है, तो एम इज इक्वल टू एम वी अपॉन वी। देखिए, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द एयरक्राफ्ट, कैपिटल वी इज द वेलोसिटी, स्मॉल वी इज द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड। तो वो छोटा सा बर्ड उस एयरक्राफ्ट को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, उसका वर्चुअल मास कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो ये भी एक लॉजिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। आपने कभी नोट किया होगा जब आप सड़क पे खड़े होते हो तो एक आप गाड़ी में बैठे होते हो तो एक ट्रक निकलता है बड़ा तेजी से, तो आपकी गाड़ी हिलती है। क्यों? वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर करता है आपकी कार को। और इसी तरह से जब हम बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो ब्रेक लगाते हैं, डस्ट बहुत उड़ती है, बाइक रेस्ट पे आती है तो डस्ट अपना बाइक अपना मोमेंटम किसको ट्रांसफर कर देता है? डस्ट को। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपसे डिस्कस किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है, इसी से ही रॉकेट्स उड़ते हैं, जेट प्लेन्स उड़ते हैं कि जैसे ही रॉकेट उड़ेगा, दिवाली वाला रॉकेट, मैं उसके ऊपर थ्योरम भी करवाऊंगा आपको। दिवाली वाला रॉकेट नीचे को गैसेस निकालता है और रॉकेट ऊपर को जाता है। उसको भी छोड़ो, आप एक बैलून ले लो, उसको हैप्पी बर्थडे वाला उसको पूरा भर लो, भरने के बाद बांधो मत, छोड़ो, वो भागता है कमरे में, तो एयर पीछे को, बैलून आगे को। तो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्लियर हुआ? इट्स योर चैनल, गॉड ब्लेस यू, वर्क वेरी हार्ड। करते हैं फिर अगला टॉपिक। एक रॉकेट प्रपल्शन मैंने करवानी है आपको, एक एटवुड मशीन करवानी है। एटवुड मशीन कुछ नहीं, पुल्ली के कॉन्सेप्ट्स हैं, और फिर देखते हैं और आगे निकलते हैं। ये चैप्टर अब काफी निकलना शुरू हो गया है और थोड़ा सी रहेगा, ज्यादा नहीं है, नोट कर लो इसको। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इसके नोट्स बना लेना आप, ठीक है।